Now let's start here the compression member. So first we have to know what is the compression member. So compression member is a structure member which is straight and subjected to two equal and opposite compressive force applied at its end. Okay, so here, so as you know what is the compressive force? Compressive force is the two opposite direction in this opposite force in the same direction. In the same direction. Okay, so here a force is applied here downward and a force is applied upward. This is called your compression force, and member which is subjected to compression force that called the compression member. Okay, so compression member, there are two types. First one is the strut. Okay, perhaps you have already studied compression member in your, that is the in column that is the in zone, that is the column. Okay, so now here, so now strut is a compression member used in roof truss and bracing. Roof truss and bracing. They are small span and may be used in the vertical and inclined. ये जो स्ट्रट होते हैं वो स्मॉल स्पैन के होते हैं, मतलब एज कम्पेयर छोटे होते हैं कॉलम के पीछे, दैट इज द कॉलम स्ट्रट कॉलम के पीछे. और क्या होता है, और रूफ ट्रस और ब्रेसिंग में यूज होते हैं. दे मे बी यूज वर्टिकल और इंक्लाइन, जनरली द इंक्लाइन. ओके, आपने पढ़ा होगा उसमें, तो दैट इज द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ द स्ट्रट, दैट इज द अदर in other condition other than vertical. Okay, so in any position other than vertical के अलावा किसी position में, that is the strut. Now here effective length, the form of curve into which a compression member tend to deflect depend upon the mode in flexure. In case there is a portion of length of the compression member which bend as if the part has been jointed in. ओके, सो व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ? एक्चुअली इफेक्टिव लेंथ इन द थिंग, एक्चुअली जो हम इस पर, यदि हम किसी पे लोड लगाते हैं, यदि हम किसी मेंबर पे लोड लगाते हैं, अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा. तो यदि हम लोड लगाते हैं तो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा. ओके, सो वी कैन टेक द पेन, ओके, सो दिस इज द रिफिल, सी दैट. So now if you are going to apply it, so this is refill, we are going to apply the force now here. Okay, so now it's going to deflect like that, it's going to deflect. So this curve जहाँ पे straight line है, this curve is called your effective length. This curve is called your effective length. This curve is called effective length. Okay, clear? कर्व को इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, एंड दिस इज द एक्चुअल लेंथ, एंड दिस इज इफ दिस इज ए कर्व, दिस कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ. ओके, क्लियर हो गया? ओके, सो अभी हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ. ओके, सो नाउ हियर, सो देयर आर डिफरेंट केसेस फॉर द इफेक्टिव लेंथ फॉर द कंडीशन. सो फॉर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द डिफरेंट, what are the different called support, different support. So now here see that this type of called rotation fixed and translation fixed. Okay, so that called you can say that is the fixed, that is the fixed end. Second one called rotation free and translation fixed. Okay, सो जो ये बताता है कि रोटेशन इसमें हो सकता है, मीन्स यहाँ पे यदि हम कोई लगाएं तो ये इस डायरेक्शन से ये इधर घूम सकता है, ये इधर घूम सकता है. ये रोटेशन दे रहा है, बट क्या है, जगह पे अपनी जगह पे फिक्स है. नाउ नेक्स्ट इज द, बंद कर दीजिए, ठीक. नाउ नेक्स्ट से रोटेशन फिक्स्ड एंड ट्रांसलेशन फ्री. सो ये कंडीशन में क्या है, ये क्या है कि ये रोटेशन फिक्स्ड है, मतलब ये रोटेट नहीं करेगा, बट ये अपनी जगह से यहाँ पे मूव कर सकता है, ये अपनी जगह से यहाँ पे मूव कर सकता है. जैसे स्लाइडिंग डोर देखा है, स्लाइडिंग डोर में क्या होता है, वो रोटेशन फिक्स्ड होता है, बट तो अपनी जगह से स्लाइड करता है. ओके, सो नाउ हियर रोटेशन फ्री एंड ट्रांसलेशन फ्री, मतलब ये सब कुछ फ्री है, ये अपनी जगह से घूम भी सकता है, या अपनी जगह पर रोटेट भी हो सकता है. क्लियर हो गया? सो रिमेंबर दिस फिगर. ओके, दिस कॉल्ड फिक्स्ड, दिस कॉल्ड रोटेशन फ्री एंड ट्रांसलेशन फिक्स्ड, and this called rotation fixed and translation free, and this called rotation free and translation free. So here rotation fixed and translation free मतलब स्लाइडिंग डोर देखा, जो स्लाइड करता है एक दूसरी जगह से, वो एक रोटेट तो नहीं हो सकता, बट एक दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है. ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. सो नाउ हियर,
सो व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑलरेडी डिस्कस। जो हमारा कर्व फॉर्म होता है, सपोज इट नाउ इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई this is your a column, and now we are going to apply the force like that. If it deflect like that, so this curve called effective length. This length of the curve is called the effective length. So now next, what are the effective length? First say effective length of the column. So here end restraint, जो end conditions होती हैं, जो both end होता है, उसकी conditions क्या है, कैसे कैसे fixed हैं, and now effective length and here the respective figure. Okay, so now here effectively held in position at both end but not restrained against rotation. ठीक, रोटेशन में फ्री है, रोटेशन फ्री है बट अपनी जगह पे फिक्स्ड है, अपनी जगह पे फिक्स्ड है, अपनी जगह पे रोटेट कर सकता है। जैसे आपने दरवाज़ा देखा है, दरवाज़ा क्या है, अपनी जगह पे फिक्स है, बट क्या करता है, जब दरवाज़ा खोलते हैं तो जो दूसरे एंड है उसके सापेक्ष से रोटेट करता है, वहाँ से घूमता नहीं, वहाँ से जगह हटता नहीं है, बट वहीं से रोटेट करता है। सो दैट्स कॉल्ड, सेम कंडीशन है कि यदि जो हमारा कॉलम है वो अपनी जगह से रोटेट कर सकता है, ठीक है, बट जाके वहीं पे रहेगा और दूसरे से हिलेगा नहीं। फॉर दिस इफेक्टिव लेंथ इज L, 1L, ओके, R 1. So now here B condition says effectively held in position at both end and restrained against rotation at one end. Okay, restrained against rotation, effectively held in position at both end. Effectively हुआ held मतलब दोनों पे क्या है, फिक्स्ड है, और एक कंडीशन, एक एंड पे क्या किया है हम लोगों ने, एक एंड पे उसे मूव दिया है कि वो क्या करे, एंड restrained against rotation, okay, एट बोथ एंड एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, एक एंड पे वो अपने आप से रोटेट नहीं कर सकता है थोड़ा सा। सो यार इफेक्टिव लेंथ इज द 0.80L. सो दिस इज द फिगर। एक एंड पे क्या है हमारा, फिक्स्ड है, एक एंड पे दरवाजे जैसा हिंज लगा है, ठीक है, वो अपने को मूव तो करा वो अपना रोटेट तो कर सकता है बट मूव नहीं करेगा। ये एक्चुअली जब हम फिक्स्ड की बात करते हैं, तो जब हमारा फिक्स्ड होता है, तो जब भी हमारा कोई बीम बेंड होता है तो वहाँ से शुरू नहीं होता है, उसके आफ्टर सम टाइम्स इट इज़ गोइंग टू टेक ए कर्व, उसके आगे से कर्व लेना शुरू करता है। सो दिस हियर इफेक्टिव लेंथ इज द 0.80L. सो फॉर इफेक्टिवली हैंड पोजिशन एट बोथ एंड एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन दैट इक्वल टू 0.80L एट वन एंड. सो नाउ हियर रोटेशन, सो हियर इफेक्टिव लेंथ इज द 0.80L. Now third condition says effectively held in position and restrained against rotation at both end. Okay, means दोनों एंड पे हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया है। जब दोनों एंड पे फिक्स कर दिया, तो जो जैसा हमने पिछली बार बताया, पीछे बताया कि जब हम फिक्स करते हैं तो जब भी स्टार्ट होगा कर्व, वो स्टार्टिंग से नहीं होगा, उसके जस्ट ए लिटिल बिट लोअर से स्टार्ट होगा, लिटिल बिट लोअर से। सो फॉर दिस द इफेक्टिव लेंथ इज द 0.65L. 0.65L. So here you can take the L, that is the 1L, 0.80L, 0.65L. So now here next one is the effectively held in position and restrained against rotation at one end and the other end restrained against rotation but not held in position. So here see that एक एंड पे हमारा फिक्स है, दूसरे एंड पे क्या है, रोटेट नहीं करेगा बट अपने स्थान से मूव कर सकता है। जब इस पर लोड लगेगा तो एक दूसरे जगह पे भगेगा, ठीक है। सो फॉर ये कर्व इस तरह होगा, ठीक है, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो दिस इज द कर्व, तो रिप्रेजेंटेटिव फिगर है, नॉट द ओरिजिनल फिगर। ओके, सो आप घर पे इसे अप्लाई करके देख सकते हो, दिस इज द वेरी सिंपल। सो नाउ हियर, सो फॉर दिस द इफेक्टिव लेंथ इज द 1.2L. इसके लिए इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, 1.2L. Now next is effectively held in position and restrained against rotation at one end fix हो गया, and at the other end the partially restrained against rotation but not held in position. ठीक है, वो थोड़ा सा पार्सली हेल्ड मतलब थोड़ा सा कि पूरा नहीं घूम सकता, एक लिमिट तक ही घूम सकता है। ओके, एक लिमिट तक ही से हमने यहाँ पे थोड़ा पार्सली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब हमने इसे पूरा फुल नहीं किया कि वो रोटेट नहीं करेगा, वो रोटेट थोड़ा सा करेगा। सी दैट फिगर, इस फिगर में क्या कर रहा है, ये देखो सपोर्ट है, वो थोड़ा सा रोटेट कर रहा है, बट अगेन वो अपने होल्ड पोजीशन पे हेल्ड नहीं है।
ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू मस्ट नो व्हाट आर द डिफरेंट इन कंडीशंस फॉर योर फर्दर स्टडीज और योर इन कंडीशन एग्जामिनेशंस। ओके, सो ये क्या कर रहा है कि अपने रोटेट भी कर रहा है, और बट फर्दर रोटेशन है, बट बहुत लिमिटेड रोटेशन है, बहुत लिमिटेड रोटेशन है, बट ये अपनी जगह से हिल सकता है। तो इसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ है 1.5 L। नाउ एफ इज द effectively held in position at one end but not restrained against rotation, and at the other end restrained against rotation but not held in position. Okay, see that it says effectively held in position at one end। ठीक है, एक एंड पे सिर्फ हमने क्या किया है, हेल्ड इन पोजीशन किया है, मतलब एक दूसरे अपनी जगह से मूव कर सकता है, बट नॉट रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है, हेल्ड इन पोजीशन, मूव नहीं करेगा, रोटेट करेगा, एंड एट द अदर एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, वो रोटेशन है बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। अगेन वो अपनी जगह पे रोटेट, रिस्टेंड अगेंस्ट, इन रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, रोटेट नहीं करेगा, बट अपनी जगह पे वो अपनी जगह से मूव कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड योर फ्री एंड। ओके, सो हियर वन एंड फ्री एंड अदर इज फिक्स। सो इफ यू अप्लाइड फोर्स, सो यू कैन गोइंग टू फाइंड द 2.0 L, one end free and one end fixed. Okay, so now here in this condition the effective length is 0.20 L. So now here effective length of strut, so effective length of strut, this is a very important, जो मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पीछे इफेक्टिव लेंथ बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट रिमेंबर एवरीथिंग। So now next is the here, so far this is the effective length of strut. So for continuous strut, for continuous strut, so continuous, that is a single or double, the effective length is the 0.7 to 1 L. Effective length vary from 0.7 to 1 L, and allowable compressive stress is the sigma. Allowable compression stress is the sigma. Now for discontinuous single angle section, okay, see that here continuous single or double section, so continuous रहेगा, और जो section है single or double, so effective length is 0.7 to 1 L, and allowable compressive strength is the sigma. Okay, so now for discontinuous मतलब छोटे टुकड़े में हुआ, single angle are connected, single angle connected with one rivet, single angle connected with one rivet, so effective length is the 1 L, and allowable compressive stress is taken is the 0.8 sigma AC. So see that here it says single angle connected with one rivet. This is for single angle strut connected by one rivet. For this, see that, so if you are here, this is for strut, and now effective length is the 1 L, effective length is the 1 L, and allowable compressive stress is the 0.80 sigma AC. So for discontinuous, again the single angle connected with more than one rivet with weld, more than one rivet with weld, single angles connected with more than one rivet or with weld. Okay, so एक से ज़्यादा रिविट से कनेक्टेड होगा या फिर वेल्ड से होगा, so इसके लिए जो होगा इफेक्टिव लेंथ इज दैट इज द 0.85 L, and allowable equal to allowable stress, shear stress, allowable compressive stress equal to sigma AC. So for see that figure, so when your strut is connected by more than one rivet or weld, यदि ये वेल्ड से करते हैं या फिर दो रिविट से करते हैं, तो उसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 होगा, दैट इज द, जस्ट वेट, okay, see now again fourth condition, that is the discontinuous, so double angle placed back to back on opposite side, back to back on opposite side to the gusset plate. ठीक है, दोनों साइड, अपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट, दोनों साइड। सो हियर जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज 0.70 L to 0.85 L तक, और जो इफेक्टिव लेंथ होगा दैट इज द सिग्मा AC. So see that figure, so that is double angle strut on opposite side of gusset plate. Okay, so for this the effective length is the varying from 0.7 to 0.85 L, and permissible stress is the sigma. So now next is the fifth, that is the discontinuous double angle placed back to back on same side of gusset plate.
at the same side of your gusset plate. So far, if its effective length is the 1L and permissible stress is equal to compressive stress equal to 0.80 sigma AC. So see that same side, see that this is your gusset plate. Here एक same side ही क्या हुआ है, दोनों एंगल सेक्शन प्लेस्ड हैं. So for this effective length is the 1L and permissible stress is the 0.8 sigma AC. So slenderness ratio, next topic is the slenderness ratio, is the ratio of effective length to the appropriate radius of gyration. Okay, so lambda equal to L by R. So how R is the radius of, here R is the radius of gyration. So R xx, that is the under R equal to under root I by A. So here to minimize, जैसा पहले भी स्टील मेंबर में डिस्कस किया गया है, to minimize steel requirement in column design so as to use the material at the greatest possible here, जिससे कि हम क्या करें कि मटेरियल को जब ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें. स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल. सो स्लेंडरनेस रेशियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा होना चाहिए. नाउ मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन मटेरियल इज फर्थेस्ट फ्रॉम द सेंट्रॉइड. ठीक है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज द आई कब ज़्यादा होगा, दैट इज द जिसका जब ज़्यादा बड़ा सेक्शन होगा तब आई ज़्यादा होगा. ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा आई रहेगा उतना हमें आर मिलेगा, और जितना आर मिलेगा उससे हमारा लेमडा. हियर सी दैट लेमडा एल से बाई में है, जितना आर बड़ा होगा उतना हमारा लेमडा छोटा होगा. सुनाओ, सो हमें क्या करना है, फॉर द सिलेंडरनेस रेशियो हमें उस सेक्शन को चूज करना है जिसका सिलेंडरनेस रेशियो कम से कम हो. उसका दो फ़ायदा है कि जैसे हमारा सिलेंडरनेस रेशियो भी स्मॉल रहेगा, जिससे हमारा सिस्टम जो हमारा मेंबर भी सेफ रहेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द shape of section. So there are various type of shape already discussed. There are angle section, built up section, that called tube section, that is the I section. There are various type of shape. We are not going to discuss all these things here. So now here, so there are some limitations. So rods and bar withstand very little compression when length is more. ठीक है, जो रॉड और बार होते हैं वो बहुत कम कंप्रेशन स्ट्रेंथ बियर करेंगे जब लेंथ ज़्यादा होगा. हेंस देयर आर रिकमेंडेड फॉर लेंथ लेस देन 3 मीटर ओनली. सो जब 3 मीटर से कम होगा तभी हम बार और रॉड को यूज करेंगे. सो ट्यूबुलर सेक्शन आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल लोड एंड लेंथ. ट्यूबुलर सेक्शन ट्यूब टाइप का, स्मॉल लोड एंड लेंथ. सो दिस सेक्शन आर यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर रूफ ट्रस एंड ब्रेसिंग. ठीक है, रूफ ट्रस और ब्रेसिंग के लिए यूज होता है. सर for equal angle are more desirable and economical than unequal ones because there are least radius of gyration in the greatest for the same area. Okay, so here it says the equal angle होता है वो most desirable होता है और economical भी होता है as compared to unequal section, क्योंकि इसका जो least radius of gyration होता है वो ज़्यादा होता है फॉर सेम एरिया ऑफ स्टील और अनइक्वल सेक्शन. अनइक्वल सेक्शन से कि आप सापेक्ष में इसका लिस्ट रेडियस वेरिएशन ज़्यादा होता है.